Hello students, welcome to this yet another important session of chemical bonding. Today we will learn some tricks to draw the Lewis structures. You can easily draw the Lewis dot structure of simple molecules, but it becomes difficult to draw the structures for polyatomic ions. So here we will discuss a trick which will make it easier to draw the Lewis structure of any molecule or ion. Now what are Lewis structures? Lewis dot structures are simple representation of molecules or ions showing the valence electrons. So when you draw the structures, they show only the valence electrons. You come to know about the number of and the type of bonds, but it does not tell anything about the shape of the molecules. So it was given by Lewis, and the electrons are represented as dots around the central atom. Now what is the method to draw the Lewis structures? First is count all the valence electrons. Now you must remember how many valence electrons are present in different elements. Suppose we are taking the second period elements: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Now number of valence electrons in lithium is valence electron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are the number of valence electrons you have to remember. Clear? Suppose you are asked, you have to draw the structure for, suppose we consider SO2. So how many valence electrons are present? So valence electrons are sulfur contains, sulfur comes below oxygen. So it has also 6 electrons. So 6 plus 2 atoms of oxygen and 6 electrons. So total 12 plus 6, 18. So this is the valence electrons in SO2. So first step, you have to count total valence electrons present in any molecule. Okay. Suppose you are given fluorine F2. Count the total number of electrons here. Number of valence electrons 7 into 2. It is again 14. So you have to count the total number of valence electrons. Second step, identify the central atom. Now to identify central atom, what is the central atom? Central atom is that which is bigger in size. It is bigger in size और lesser in number, जो कम होंगे नंबर में मॉलिक्यूल में, lesser in number और less electronegativity जिसकी कम होगी. Suppose you are given SF4. Clear? So which is the central atom? Sulfur is bigger in size. इट इज़ लेसर इन नंबर. सिर्फ एक एटम सल्फर का है, 4 एटम फ्लोरीन के हैं, तो कम है नंबर में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन से कम है. सो व्हाट इज द सेंट्रल एटम? सल्फर इज द सेंट्रल एटम हियर. सल्फर इज सेंट्रल एटम हियर. क्लियर? सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम इन ए पॉलीएटॉमिक स्पीशीज. कार्बोनेट आयन दिया हुआ है CO3 2-, तो कार्बन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, कम है नंबर में और लेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. सो कार्बन इज द सेंट्रल एटम हियर. सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम. वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन माइंड, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम. ये दोनों कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो अगर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, उस केस में हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे. सो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम. क्लियर? थर्ड स्टेप इज ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर. स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है कि सेंट्रल एटम, सपोज कार्बोनेट आयन दिया हुआ है, उसमें सेंटर में कार्बन बनाओ और ऑक्सीजन एटम्स को इस तरह से अरेंज कर दो. सो दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर्स. क्लियर? नाउ फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्टेट ऑफ टर्मिनल एटम्स मस्ट बी कंप्लीटेड फर्स्ट. When you are filling the electrons, trying to complete the valency of these atoms, first you have to complete the octet of the terminal atoms. तो पहले इन 3 ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे, उसके बाद कार्बन की ऑक्टेट को कंप्लीट करोगे. फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द टर्मिनल एटम्स एंड देन द सेंट्रल एटम. ये अभी क्लियर हो जाएगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल. सो दीज आर द 4 स्टेप. फिफ्थ स्टेप वी विल डिस्कस. फिफ्थ स्टेप इज सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स. सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. एग्जाम्पल है SO3, इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है.
देन CCl4 टर्मिनल सेंट्रल एटम पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो मोर देन सॉरी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. 1 मिनट. SO2 इज अनदर एग्जाम्पल. ठीक है. How many electrons are there? I think 8 electrons are present in this one. Not SO2, ClO4 we can take, ClO4 minus. तो इनमें टर्मिनल एटम में सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. इट मे बी पॉसिबल बट नॉट लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम. एग्जाम्पल है, सपोज यू हैव H3O प्लस. H3O प्लस में ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता. ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन. तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. क्लियर. अनदर एग्जांपल इज NH4 प्लस. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन. सो पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा? नाइट्रोजन पे रहेगा. अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो टर्मिनल एटम पे प्रेजेंट होगा, लाइक SO4 2 माइनस. तो यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज किस पे होगा? निगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन. टर्मिनल एटम ऑक्सीजन है. क्लियर. देन नाउ फर्स्ट वी विल कंसिडर सिंपल मॉलिक्यूल्स टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर. सपोज देखो तुम्हारे पास O2 है. ठीक है. यू हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स. 2 ऑक्सीजन एटम्स का मतलब है कि यह टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8 प्लस 8 सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 प्लस 6 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. क्लियर. नाउ सी oxygen has 6 electrons with it. It needs 2 electrons to complete its outermost shell. 6 electrons है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. ठीक है. तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के क्रॉस से बना रहे हैं. ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, देन दीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन. तो 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के. इफ दे आर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर ऑक्सीजन एटम, देयर ऑक्टेट विल बी कंप्लीट. तो ये जो शेयरिंग करेंगे इट विल बी लाइक दिस. ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड बिटवीन देम. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए एंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बिलोंग टू बोथ द एटम्स. सो यू विल गेट O double bond O. Now here 2 lone pairs and here also 2 lone pair. So this is the structure. कार्बन डाइऑक्साइड का बना है, सेंट्रल एटम इज कार्बन, 2 ऑक्सीजन बनाओ स्केलेटल स्ट्रक्चर. नाउ यू हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीजन ऑलवेज मेक डबल बॉन्ड. अगर वो न्यूट्रल है ऑक्सीजन एटम, इट विल मेक डबल बॉन्ड. तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया. नाउ दिस ऑक्सीजन हैज शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इस ऑक्सीजन ने, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बचे. 8 हो गए दोनों के. ठीक है. एंड कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स. इट हैज शेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स. हियर आई विल शो विद अनदर स्केच. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर लिए. सो ऑल हैव कंप्लीटेड देयर octets. So this is the Lewis dot structure of CO2. Problem comes when you have to draw the structure for the charged species and or polyatomic ions. So we will discuss the trick here. Now we will draw the Lewis dot structure of CO. Okay. First count the total number of valence electrons here. So total number of valence electrons you can count. Valence electron will be equal to कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6. 4 प्लस 6 10. क्लियर. सो फर्स्ट स्टेप था काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सेकंड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वी विल डू 2 into 8. कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 into 8 16 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस स्ट्रक्चर नीड्स टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी. देन व्हाट वी विल डू, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू number of electrons required for stability. We will represent it by ns minus valence electron. तो स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? 16. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6. मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दो. 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड्स.
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मीन्स 3 बॉन्ड्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, उसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल 10 में से 6 शेयर कर दिए तो कितने बचे, 4। ऑक्टेट कंप्लीट करो, ऑक्सीजन पे 6 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन पे 6 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर CO. I hope it is clear. Now we will try for Cn minus. ठीक है बेटे, Cn माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, और अगर निगेटिव चार्ज है तो हम +1 कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, सॉरी +1, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ईच एटम रिक्वायर्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वी विल डू 8 into 2. How many are there? 16. 1 minute. कार्बन है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 1 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5, 1 minute, 4 + 5 + 1, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एंड 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 इज द नेगेटिव चार्ज। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10, क्लियर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 16 - 10, तो ये हो गए 6। शेयर कर दो, कार्बन और नाइट्रोजन बनाओ, उनके बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, 16 - 10 6, तो यहाँ पे इसके नाइट्रोजन हैज़ ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिए, ठीक है। नाउ कार्बन, सॉरी 1 minute, 10 - 6, 1 मिनट बेटा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट विल बी इक्वल टू 10, टोटल 10 थे, उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस कार्बन एंड ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस. So this will be the structure. I will tell it once again. Valence electrons are 4 plus 5 plus 1 negative charge. Then number of electrons required for stability is 16. Shared electrons, valence number of electrons required for stability minus valence electrons, 16 minus 10 6. तो 6 electrons share कराए, total कितने electrons थे 10, 10 minus 6 4. So you will 4 electrons are left. ये structure हो जाएगा, ठीक है. So coming to the next one, we will do for NO2 minus. NO2 minus nitrogen valence electron count करो, nitrogen 5, oxygen 6, 2 into 6 and minus charge means plus 1. So total valence electron are 12 plus 6, 18 valence electrons. This much is clear, ठीक है. 18 valence electron हो गए, 5 plus 6 into 2 12 plus 5 17 plus 1 18. Number of electrons required for stability, there are 3 atoms, 8 into 3 24. Shared electron will be number of electrons for stability minus valence electron, so it will be 24 minus 18 is equal to 6. अब यहाँ पे central atom बनाओ, नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, you have to share 6 इलेक्ट्रॉन, तो या तो 2 इधर शेयर, 4 इधर शेयर करो, 2 इधर शेयर करो, तो ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है. यू हैव टू शेयर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, या 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है. 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 18 minus 6 शेयर कर दिए, so how many are left, 12. Now complete the valency of the, complete the octet of the terminal atoms first. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, ठीक है. अब 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिए, 6 और बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, यू विल राइट हियर 4 plus 4 8 हो गए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए. बचे कितने, 6 plus 4 10 शेयर कर चुके हैं, 2 बच्चे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल अपीयर हियर. सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2 minus. Here we will put minus charge. I hope it is clear. Valence electrons count करो पहले, then number of electrons required for stability
8 into 3 जितने एटम्स हैं. Shared electrons will be equal to number of electrons for stability minus valence electron. Then electrons left will be equal to जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कराए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से उसे माइनस कर दो. यू विल गेट इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट. यू हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द टर्मिनल एटम्स फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल एटम. नाउ वी विल डू फॉर कार्बोनेट आयन. हियर द सेंट्रल एटम इज कार्बन and there are 3 oxygen atoms. We have made the skeletal structure. Now count the number of valence electron. Carbon 4, oxygen 6, 3 atoms are there, 6 into 3 plus 2 because there is 2 negative charge. So 6 18 plus 4 22, 22 plus 2 24. Total valence electrons are 24. Number of electrons required for stability, total 4 atoms are there and each atom require 8 electrons. So it is 32. Shared electrons will be number of electrons for stability minus valence electrons. 32 minus 24. It will be 8. Clear? So 8 electrons you have to share between them. Now make the 8 electrons between them. 8 electrons कैसे बनाएंगे? 4 electrons यहाँ पे बनाए. सपोज 4 2 6 2 8 हो गए 8 electrons. 4 plus 2 plus 2. So you have shared 8 electrons. Now how many electrons are left? Total electrons थे 24. 24 में से 8 शेयर करा दिए. How many are left? 16 are left. अब देखो जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है उसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए बिकॉज इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन बनाए. इस ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दो. इस ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दो. टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. 6 plus 6 12, 12 plus 4 16. ये कंप्लीट हो गया. सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बोनेट आयन. क्लियर? One more example we will see here, O3. Clear? Now O3 has 3 oxygen atoms like this. Clear? Valence electron 6 into 3 18. Total electrons required, each atom require 8 electrons. 8 into 3 24 electrons required. Clear? Shared electron will be 24 minus 18. So it is 6 electrons. 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करो. 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? 18 minus 6. मेक द लोन पेयर्स. तो हमें कितने चाहिए? 12 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कराना है. ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड है उस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे. ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विल हैव नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स. 6 plus 4 10 and 2 electrons here. 4 plus 2 6 plus 2 8. So this is the Lewis dot structure for ozone. So I hope it is clear now. You can use this trick. First you find the valence electron, then number of electrons which are required for stability, then check the shared electrons, number of electrons for stability minus valence electron, then electrons जो इतने शेयर करने हैं वो शेयर कराओ, then electrons left. Complete these electrons by putting on the terminal atoms and completing their octet first and then the remaining electrons on the central atom. So this way you can draw the Lewis dot structures easily. I hope you have understood this concept. If you like the video, please do share, subscribe it. Thank you.